أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 60 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی سینا میں ہیں اور وہاں پر ان پر منہ اور سلویٰ اللہ کی طرف سے آسمانی غذا اترتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے سر پر ہر وقت پانی سے بھرا بادل رہتا تھا جس سے ان کی پانی کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ لیکن کیونکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی اور پانی کے لیے ہر وقت بارش کا انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا، اور اس کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب، مارو، بعصاک، اپنی عصا یعنی اپنی لاٹھی، ضربہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، حجر بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، جیسے حجر اسود پتھر کو کہتے ہیں۔ فجرت، تو پھوٹ پڑے، فجر کہتے ہیں پھٹنے کو اور پھر کوئی چیز باہر آنا، جیسے فجر ہم صبح کو بھی کہتے ہیں جب اندھیرا پھٹتا ہے اور روشنی کی کرنیں باہر نکلتی ہیں، تو اسی طرح سے یہاں کہا گیا ہے فن فجرت، پتھر پھٹنے سے پانی باہر آنا، من ہو، اس سے، یہ ہو جو ہے وہ پتھر کی طرف اشارہ ہے کہ پتھر سے پانی پھٹ پڑا، اثنتین عشرہ، 12 عینن، چشمے، 12 چشمے نکلے جب پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ماری۔ اور کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 12 چشمے عطا کیے تاکہ پانی پر ان کے جھگڑے نہ ہو، لڑائی نہ ہو، کیونکہ پانی پر اکثر اس لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ خون خرابے پر اتر آتے ہیں۔ قد، تحقیق، علما، جان لیا، عین لام میم اس کا روٹ ہے، علم سے یہ ہے، علما، جان لیا، کلو، ہر ایک، سب، اناسن، لوگوں نے، ناس ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کیونکہ پتھر میں سے 12 چشمے نکلے تھے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں میں یہ 12 چشمے تقسیم ہو گئے تھے، یا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ کس کا کون سا چشمہ ہے، یا یہ خود آپس میں انہوں نے ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو، گھاٹ کو، مشرب جو ہے وہ مفعل کے وزن پر ہے، اور اسی طرح سے اور بھی ورڈز ہیں جو مفعل کے وزن پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں مدفن تو وہ ہوتی ہے دفن ہونے کی جگہ، مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ، اور اسی طرح سے مسجد بھی مفعل کے وزن پہ ہے، یعنی سجدے کی جگہ، مفعل جو وزن ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح سے معنی بنتا ہے، مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یا سورج کے غروب ہونے کا وقت، اس کے اندر وقت کا معنی بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مشرق یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں، اور سورج کے طلوع ہونے کے وقت کو بھی مشرق کہتے ہیں۔ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، شرب پینے کی چیزوں کے لیے آتا ہے، اور مشربہم ہم نے پڑھا اس سے پہلے جس کا معنی تھا ان کے پانی پینے کی جگہ، اور یہاں پہ کہا گیا پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے پیو اور کھاؤ، ولا، اور نہ، تعثوا، تم فساد کرو، تعثوا فساد میں تیزی کے لیے آتا ہے، انسان کا ذہن
जिस्म से ज्यादा तेज होता है, और फसाद जो होता है वो हिस्सी और मानवी दोनों होता है, लेकिन आसा जो होता है वो जहनी बिगाड़ के लिए आता है। फिल अर्दी, जमीन में। अर्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जमीन को कहते हैं। इंग्लिश का जो अर्थ है वो इसी अर्द से निकला है। मुफसिदीन, मुफसिद बनकर। फा सा दाल इसका रूट है, फा सीन दाल, और मुफसिद कहते हैं फसाद करने वालों को। वह इज़ तस्का, तो जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, तो अल्लाह ने पत्थर से पानी निकाल दिया रेगिस्तान में, और वो भी 12 चश्मे। तो इससे ये पता चलता है कि नबी भी अल्लाह ही से मांगा करते थे जो भी उनकी मुरादें होती थी, और हमें भी अल्लाह से मांग लेना चाहिए जो भी हमारे दिल की मुराद हो, जो भी हमारी हाजतें हो, चाहे वो हमारे लिए नामुमकिन हो। क्योंकि रेगिस्तान में पत्थर से पानी निकालना हमारे लिए, हमारी सोच में नहीं आता, हमारी अकल में नहीं आता कि ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए ये मुमकिन है। तो चाहे जो भी हाजत हो, चाहे जो भी दिल की मुराद हो, हमें मांग लेना चाहिए अल्लाह से। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, और ये कि कोई चीज मुमकिन है या नामुमकिन है, क्योंकि हमारे लिए चीजें नामुमकिन या मुमकिन होती है, लेकिन अल्लाह के तो सिर्फ कुन कहने की देर है और वो चीज हो जाती है। तो हम अल्लाह से मांग सकते हैं, और ऐसी आयतों की, कुरान की ऐसी आयतों का वास्ता देकर कर भी मांग सकते हैं कि यार अब जिस तरह से तूने रेगिस्तान में पत्थर से 12 चश्मे निकाले बनी इसराइल के लिए, तो तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, तो तू अब मेरी ये दुआ भी कबूल कर ले, मेरे लिए भी ये चीज मुमकिन बना दे। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो यूं ही पानी निकल आता पत्थर में से, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी असा को पत्थर पर मारो, और जब उन्होंने असा पत्थर पर मारी तब उसमें से पानी फूट पड़ा, ताकि लोग अल्लाह को अल्लाह माने और नबी को नबी माने। नबी के जरिए मोजेजा दिखाया। सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे, उन्हें काफ़ी लंबे अरसे तक खड़ा रहना पड़ा, और उसके बाद उस मौके पर सहाबियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी मांगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पानी का बकेट मंगवाया, और उसमें थोड़ा सा पानी था, उसमें उन्होंने उंगली रखी, और उनकी उंगली से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली से कंटिन्यूसली पानी निकलता रहा, और 1400 सहाबी सैराब हो गए। और ये मौजिज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी हमें बताया। वह और इद, जब कुल तुम कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये ए मूसा कह के पुकारते थे। ये नहीं कि ए अल्लाह के रसूल, या ए नबी, या नबी, या अल्लाह के नबी, इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से पुकारते थे जैसे कि ये उन्हीं में से कोई एक हो। लन, हरगिज नहीं, नस्बिरा, हम सब्र करेंगे। सबारा इसका रूट है, सब्र करने का मतलब होता है अपने आप को गुस्से से, गैज़ व गज़ब से, अपने आप को जोर जोर से रोने और बुरा बर्ताव करने से, कंट्रोल से बाहर होने से अपने आप को रोक लेना। तो नहीं हम सब्र करेंगे अला ऊपर, तआमिन, तआम कहते हैं खाने को, आइन मीम इसका रूट है, और मताम कहते हैं रेस्टोरेंट को। बहुत से लोगों को पता होगा कि मताम अरबी में रेस्टोरेंट को कहते हैं। वाहिदिन, एक ही, वाहद कहते हैं एक को। फदऊ, तो बस दुआ करो, बस पुकारो, अल्लाह को बुलाओ, फदऊ पुकारो। ना हमारे लिए रब का, अपने रब से। मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ए मूसा अपने रब से मांगो, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल के रब ना हो। और ये कह सकते थे रब ना, चले मूसा अलैहिस्सलाम हमारे रब से हमारे लिए मांगे, या ये कह सकते थे कि आए मूसा अलैहिस्सलाम हम मिलकर अपने रब से कुछ मांगे जो हमें चाहिए, लेकिन ये कहते हैं ए मूसा मांगो अपने रब से। युखरिजा, कि वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा उसमें से, तुम भी तू, नून बाता इसका रूट है, नबातात कहते हैं जमीन से उगने वाले पौधों को, अल अर्दु जमीन। तो जो अब हम जो आसमानी गिजा है उस पर सब्र नहीं करेंगे, बल्कि अब हमें जमीन से उगने वाले अनाज और गिजा चाहिए। मिम बकलिहा, यानी सब्जी अपनी, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स या हर्ब्स।
वकिस्साइहा और ककड़ी अपनी यानी कुकुम्बर, वफूमिहा और गंदुम अपनी यानी गेहूं या अनाज या ये लहसुन के लिए आया है, वअदसिहा और मसूर अपने, अदस कहते हैं मसूर को या दालों को, पल्सेस, वबसलिहा और प्याज अपने। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हमें खाने पीने की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, और ये मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह से एक लिस्ट दे रहे हैं कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को सब्जी मंडी भेज रहे हो खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। इन्हें नहीं एहसास कि ये किससे बात करें, ये रसूल है अल्लाह के। इन्हें इस तरह से नहीं, बल्कि अगर चाहते तो कह सकते थे कि यार नबी हमारे लिए दुआ करो कि हमें इन चीज़ों पर सब्र आ जाए, या हमारे लिए दुआ करो कि हमें और भी चीज़ें खाने को मिले। लेकिन ये कहते हैं कि अपने अल्लाह से दुआ करो, अपने रब से दुआ करो। दुआ करना और किसी से कहना कि हमारे लिए दुआ करें, ये कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह को दुआ करने वाले और अल्लाह से हर वक्त मांगने वाले लोग बहुत पसंद हैं। जब भी दिल में कोई ख्वाहिश आए या जब भी कोई चीज़ हमें लगे कि हमें चाहिए, तो हमें अल्लाह से ज़रूर मांगनी चाहिए और जल्दी मांग लेनी चाहिए। और ये चीज़ हमने देखी है कि सहाबी रसूल भी अल्लाह से हर चीज़ मांगा करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा करते थे कि हमारे लिए इस चीज़ की दुआ करें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ किया करते थे। लेकिन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल का जो बर्ताव है कि बोलो अपने रब से, ये एक बहुत ही नापसंदीदा चीज़ है। और ये जो नाशुक्री का इज़हार है कि हम सब्र नहीं करेंगे जो हमारे पास है उस पे, और हमें और अता करा जाए, हमें ये दिया जाए और वो दिया जाए, जिस तरह से मांगा जा रहा है वो तरीका गलत है। काला कहा, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो। अ का माना है, ये जो हमजा आ रहा है इसका माना है क्या, ता का माना है तुम, तस्तब्दिलूना, तस्तब्दिलूना यानी बदलना चाहते हो। बा दा लाम इसका रूट है, बदलना इसका माना है तब्दील करना, क्या तुम एक्सचेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। अल्लज़ी उससे जो, हुआ वो, अदना कमतर है, इंफीरियर है, छोटा है। अल्लज़ी उस बदले उसके जो, हुआ वो, खैरुन बेहतर है। यानी जो गिज़ा आसमान से उतर रही थी मन्ना सलवा, वो उनके लिए बेहतर था। न्यूट्रिशियस वैल्यू, टेस्ट, हर हिसाब से वो बेहतर था। उसके अलावा वो आसमानी गिज़ा थी, और जो परिंदे होते हैं उसको पकड़ना कोई आसान नहीं होता, लेकिन ये परिंदे इनके पास आ जाया करते थे और ये आसानी से उसे पकड़ लेते थे। और ये पका पकाया खाना था, यानी इन्हें कोई मेहनत नहीं करनी थी। अगर हमें कोई ज़मीन से उगने वाली चीज़ें चाहिए होती है तो उसके लिए हमें ज़मीन खोदनी होती है, बीज बोना होता है, बारिश का इंतज़ार करना होता है, फिर बारिश उसको उगाती है, उसके फसल के पकने का इंतज़ार करना, उसको काटना, पकाना, यानी हज़ारों काम उसके साथ जुड़ जाते हैं, और ये इन्हें एज़ इट इज़ मिल रहा था। तो ये जो माँग रहे थे वो अदना था, कमतर था जो इनके पास था उससे, लेकिन शुक्रगुज़ारी नहीं थी। खैरुन जो बेहतर है, बेटर है। खैर हम उर्दू में भी कहते हैं, इहबितू तो उतर जाओ, मिस्रन किसी शहर में। मिस्र सिटी को या शहर को कहते हैं। फ़इन्ना तो बेशक लकुम तुम्हारे लिए है, मा जो तुम मांगते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होते हुए इनसे कह रहे हैं कि अगर यही छोटी मोटी चीजें तुम्हें चाहिए तो मुझसे क्यों मांगते हो, चले जाओ किसी भी शहर में और वहां मिल जाएगी तुम्हें ये जो तुम मांगते हो। और मूसा अलैहिस्सलाम को ये पता था कि बनी इसराइल एक मकसद के लिए बनाए गए हैं। बनी इसराइल अल्लाह की चुनी हुई कौम है, और ये अपने मकसद को भूलकर एक छोटी मोटी खाने पीने की चीजों में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। बन्नी इसराइल के पास खाने के लिए सिर्फ एक ही तरह की ग़िज़ा थी, मन्ना और सलवा, और हर वक्त ये मन्ना और सलवा खा के उकता गए हैं। आप देखें हम भी इसी तरह से एक खाना खा के दूसरी बार अगर वही खाना खाएं तो कहते हैं अरे ये तो सुबह ही खाया था, लेकिन ये उसी खाने को, उसी ग़िज़ा को हर वक्त खाते थे। तो उस
से ये उकता कर अपने गुलामी के दिनों को और अपने जिल्लत और रुसवाई के दिनों की ग़िज़ा को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो खाना हमें चाहिए। देखिए, बनी इसराइल जब कैद में थे, यानी जब गुलामी के ज़माने में थे, तब ये लोग, जब इनके बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है इनकी आँखों के सामने, तो ये नज़रें उठाकर फ़िरौनियों की तरफ नहीं देख पाते थे। और ऐसी नेमत जो अभी इन्हें आज़ादी की नेमत मिली है, उसकी नाशुक्री करते हुए उस खाने को याद कर रहे हैं जो इसे उन्हें उस वक़्त मिलता था। यहाँ देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी, उसे जो हुआ वो अदना कमतर है, बिल्लज़ी, उस बदले उसके जो हुआ वो खैरुन बेहतर है। ये अल्लज़ी जब आता है वो सिंगुलर के लिए या वाहिद के लिए आता है। अगर अगर प्लूरल या फिर जमा की बात होती है तो वो उसका मतलब होता है अल्लती। अल्लती कहा जाता है उसके लिए। तो यहाँ एक चीज़ को एक चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम खाने पीने की चीज़ों को, यानी मन्ना सलवा को मिस्र के खाने पीने से नहीं कंपेयर कर रहे, बल्कि यहाँ की आज़ादी को मिस्र की गुलामी से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ की आज़ादी बेहतर है वहाँ की गुलामी से। जब कोई शख्स किसी का गुलाम होता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उसकी जिंदगी में स्टक हो जाता है। अब उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, जिस सिचुएशन में वो है उसी में रहेगा हमेशा, और उसके बच्चे भी गुलाम ही होंगे और उसके बच्चे भी गुलाम ही होंगे, यानी अब उसकी जनरेशन्स की सिचुएशन भी अब कभी बेटर नहीं होगी। आप देखें, अगर एक गुलाम है और वो किसानी करता है, किसान का काम करता है, तो वो सारी ज़िंदगी भी किसानी का काम करता रहेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी या उसकी औलाद की ज़िंदगी कुछ बेहतर नहीं होगी। उसकी औलाद भी वही करेगी। लेकिन अगर एक आज़ाद किसान है, अगर वो मेहनत करता है और वो कुछ कमाता है और उसके पास वो कुछ रखता है, कुछ बचा भी लेता है, कुछ धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ प्रोग्रेस होगी। हो सकता है वो नया खेत खरीदे, या हो सकता है उसका अपना खेत हो जाए, या उसके बच्चों को पढ़ा-लिखा कर कोई बेहतर इंसान बना पाए, या कोई और बेहतर ज़िंदगी अता कर पाए। तो एक आज़ाद शख्स की मेहनत और एक गुलाम की मेहनत में फ़र्क है। गुलामी की ज़िंदगी ज़िल्लत की ज़िंदगी है और आज़ादी की ज़िंदगी को उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस बदतरीन ज़िंदगी में, उस गुलामी की ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हो? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही की गुलामी में है इंसान की सच्ची आज़ादी। जो शख्स अल्लाह का बंदा नहीं है, या जो अल्लाह की गुलामी कबूल नहीं करता है, उसे दूसरी हर चीज़ की गुलामी करनी पड़ती है, और वो दूसरी चीज़ों का गुलाम ज़रूर बन जाता है। कुछ लोग हर वक़्त दूसरे लोगों की फ़िक्र में लगे रहते हैं। हर वक़्त उन्हें फ़िक्र होती है कि कहीं कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं उसके स्टैंडर्ड्स का मैं ख़्याल रख लूँ, या उसकी पसंद-नापसंद का मैं ख़्याल रख लूँ, वरना वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए या वो मुझे कुछ कह ना दे। और कभी-कभी कुछ लोग पैसों के पीछे हर वक़्त टेंशन में रहते हैं। हर वक़्त उन्हें फ़िक्र होती है कि और पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने हैं। और इसके लिए वो कुछ भी सैक्रिफ़ाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी वैल्यूज़ और कभी-कभी अपनी इज़्ज़त भी। कुछ लोग फ़ैशन और ब्रांड्स के दीवाने होते हैं। उसके लिए वो हर वक़्त फ़िक्रमंद होते हैं, और उसके पीछे वो खुद को और दूसरों को हर वक़्त उसी पैमाने पे तोलते हैं। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों की तरह रहना चाहते हैं। दोस्तों की तरह ड्रेस अप होंगे, दोस्तों की तरह बोलेंगे, दोस्तों की तरह ही गाने सुनेंगे, उन्हीं की तरह खड़े रहेंगे, उन्हीं के स्टाइल्स को फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट फिट इन दैट ग्रुप, यानी अब आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो अगर उनकी तरह नहीं हो। उन्हीं की तरह से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वो अगर गलत करें तो सबको गलत करना होगा ताकि वो उस ग्रुप का हिस्सा बने रहें। और ये सारी किसी न किसी फॉर्म में गुलामी है। ये हम गुलाम हैं दूसरी चीज़ों के, फैशन के, ब्रांड के, लोगों के, या पैसों के, या और बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जिसकी हम गुलामी करते हैं, अगर अल्लाह की गुलामी नहीं करते। असल में अल्लाह ही की गुलामी में सच्ची आज़ादी है इंसान की।
اللہ کا بندہ جو بن جاتا ہے پھر اسے کسی کے مطابق چلنے کی ضرورت نہیں اور کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اللہ اگر اس سے راضی ہے تو وہ بھی راضی ہے۔ ہبکو مصرن، مصرن کہا جاتا ہے شہر کو، کسی بھی سٹی کو، شہر کو، اور اگر یہ مصرا ہوتا یا تنوین نہیں ہوتا تو اس کا مطلب بنتا کہ ایجپٹ جہاں سے یہ لوگ بچ کر آئے تھے، لیکن یہاں مصرن کہا گیا، کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی اور شہر میں، اور شہر کے لیے بہت سے لفظ آتے ہیں عربک زبان میں، بلد کہا جا سکتا تھا، مدینہ کہا جا سکتا تھا، قریہ کہا جا سکتا تھا، یا ارض کہا جا سکتا تھا، لیکن مصرن کہا گیا کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سرکازم کی طرف، یعنی ان کے غصے کی طرف ان کی ناراضگی دکھاتا ہے کہ انہوں نے کہا چلے جاؤ کسی بھی اور مصر میں، فَإِنَّا تو بے شک لکم تمہارے لیے ہے ما جو سألتم مانگا تم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ تو اب بے شک تمہیں وہی ملے گا جو تم نے مانگا ہے، جو مانگ رہے ہو یعنی ذلت اور رسوائی کی زندگی، تو ٹھیک ہے اگر یہ چاہیے تو۔ وَضُرِبَتْ اور مار دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت، رسوائی، ہیوملیشن، یعنی ان کے اوپر ذلت کا تماچا مار دیا گیا۔ وَمَسْکَنَتُ اور محتاجی، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، جہاں انسان ٹھہر جاتا ہے، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی غربت میں، اپنی پریشانی میں، اپنی غریبی میں، اپنی بیماری میں اس طرح سے پھنس جائے، اٹک جائے کہ وہ اس سے باہر نہ نکل پائے، اتنا قرضدار ہو جائے کہ وہ غریبی میں اور غریب ہوتا جائے، اور اب اس کو اس سے باہر آنے کا کوئی ذریعہ نہ نظر آئے، وہ اس سے ابھر نہ پائے، ایسے شخص کو کہتے ہیں مسکین۔ تو یہ ان کے اوپر محتاجی مار دی گئی، وباء اور وہ پلٹے، اور وہ لوٹے بغضب ساتھ غضب کے، غصے کے، ناراضگی کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اب ان کے ساتھ رہ گئی اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ۔ ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکفرون کفر کرتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا۔ ذالک یعنی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ غضبناک ہوا ان پر، اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کچھ سبزی کھانے کے لیے مانگی، بلکہ یہ ہمیشہ سے کانو تھے، یہ یکفرون کفر کرتے یعنی انکار کرتے اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے معجزات کی جو انہیں دکھائے گئے، اور کفر کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے ناشکری، کیونکہ شکر کا الٹا ہوتا ہے کفر، تو یہاں یہ ناشکری کرتے رہے اللہ کی نعمتوں کی، جو بادلوں کا سایہ ان پر ہوا، جو منہ سلوہ ان پر اترتی تھی، آسمانی غذا، جو پانی کے چشمے ان کے لیے نکالے گئے، ان سب نعمتوں کی بھی ناشکری یہ کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ اور یہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو، یہ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، یہ قتل کر دیتے تھے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، بغیر الحق بغیر کسی حق کے، بے گناہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ ان چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے انہیں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو مارنے کی کوشش بھی کی اور نبیوں کے اوپر قتل کرنے کی کوشش بھی کی، اور قتل بھی کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور اس کے علاوہ موسیٰ نبی سے پہلے بھی انہوں نے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا۔ ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے نکلتے۔ ذالکہ اب یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، یہ کیوں قتل کرتے تھے، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے نبیوں کی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبیوں کے حساب سے ہم اپنی زندگی جئیں، یہ چاہتے تھے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے جئیں، ہمیں کوئی نہ روکے، کوئی نہ ٹوکے، اور کسی طرح سے ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، اور اسی وجہ سے یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کو اپنی زندگی اپنی طریقے سے جینے کی، اپنے خواہش کے ساتھ یہ اپنی زندگی جی سکے، اور یہ حد سے آگے بڑھتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے اپنے کاموں میں۔ تو جو کچھ بنی اسرائیل اپنے نبیوں کے ساتھ کرتے رہے،
वही आज मुसलमान अपने स्कॉलर्स, अपने लर्नड लोगों के साथ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के स्कॉलर्स, मेरी उम्मत के उलमा नबियों की तरह हैं। तो ये जो आयतें आई है, जो बनी इसराइल के ज़रिए हमें बताया जा रहा है कि अब हमें अपने स्कॉलर्स, अपने लर्नड तबके के साथ इस तरह से नहीं करना है। जब हमें रोका जाए किसी गुनाह से, जब हमें बताया जाए कि ये नाफरमानी है अल्लाह की, तो हमें इस तरह से बर्ताव नहीं करना है जो बनी इसराइल अपने नबियों के साथ करते रहे। और जो सज़ा इन पर आई ऐसा करने की वजह से, इन पर अल्लाह ने ज़िल्लत और रुसवाई और मस्कनत मुसल्लत कर दी, और इन पर अल्लाह का गज़ब आया और इनसे अल्लाह नाराज़ हुआ। तो यही सज़ा है मुसलमानों के लिए अगर उन्होंने भी यही वही किया जो बनी इसराइल करते रहे। तो इन आयतों के ज़रिए हमें सिखाया जा रहा है कि हमें क्या करना है। और इस आयत के ज़रिए हमें ये भी सिखाया जा रहा है कि छोटी-छोटी दुनिया की ख्वाहिशात के लिए बड़ी-बड़ी नेमतों की नाशुक्री ना करें। कई बार बहुत से लोग बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हर वक़्त रोते रहते हैं कि जॉब है तो क्यों मुझे सुबह-सुबह उठना पड़ रहा है, क्यों मुझे, यानी हर वक़्त किसी न किसी बात की कंप्लेन उनके चेहरे पर, उनकी बातों में होती है। बच्चे हैं तो बस तंग कर रहे हैं, और अगर घर है तो बस इसकी सफाई क्यों करनी पड़ रही है, मैं क्यों इतनी परेशान हूँ, मुझे क्यों खाना बनाना पड़ रहा है। यानी हर वक़्त किसी बात को लेकर परेशान रहना या किसी बात की कंप्लेंट्स करते ही रहना, ये भी बहुत बड़ी नाशुक्री है। इस आयत से हमें ये भी पता चलता है कि बनी इसराइल एक बड़े मकसद के लिए चुने गए थे। जैसे कि आज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह ने चुना है ताकि हम और दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल कायम करें। लेकिन बनी इसराइल छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटी-छोटी दुनिया की ख्वाहिशात के अंदर फंसे रहे और अपने मकसद से दूर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.